I would say the people would miss something very big in their life if they don't sit and meditate in different places in India. Now, India is the home of yogic sciences. If you go to Mathura, Vrindavan, there is Bhakti Yoga, there is notion of devotion. And then if you happen to go to Rishikesh or the banks of Ganges in Allahabad or anywhere, you find the Jnana Yoga. In Leh and Ladakh, we have had many camps for silent meditation. You go to Tiruchendur, on the beaches of Tiruchendur, when there are waves in Tamil Nadu, and the meditation is different. I would encourage everyone to have a taste of India, travel around, and experience yoga. Incredible India. Hi everyone. Physical fitness can neither be achieved by wishful thinking nor outright purchase. You have to put efforts. Physical fitness. Today is 22nd of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, your journey, days, months, and years. The day to day highs and lows don't define your year. Zoom out, take a deep breath, then assess your journey. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Swarm है मतलब झुंड है, moving in or forming a large or dense group. Confabulate मतलब बातचीत करना, to exchange viewpoints or seek advice for the purpose of finding a solution to a problem. Staple diet है मतलब प्रमुख है, the main or greater part of something as distinguished from its subordinate parts. Tranche, that is अंश, a portion of something, especially money. बाक मतलब बाधा डालना, to prevent from achieving a goal. तो आज के vocab words हैं बाक, tranche, staple, confabulate, swarming. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये C set है. This is question number 1. Try to answer this question. And this is question number 2. Again, try to answer this question. This is mains course 15 September 2023 हम target कर रहे हैं. This is prelims course next year 26th of May 2024. Preliminary exam का ये course है. This is a year long course. इसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये है आंसर राइटिंग. प्रिपेयर अ 1 पेज समरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. हेल्थ केयर इन इंडिया, चाइल्ड एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं. इन पे आप चाहो तो 1 पेज से ज़्यादा की समरी भी लिख सकते हो, बट प्रिपेयर अ समरी. जितनी भी आपको डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग सबको एक जगह कंसोलिडेट करो. ये जो वर्ड है कंसोलिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है. कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. पढ़ाई को आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए. ओके, सो कंसोलिडेट हेल्थ केयर इन इंडिया, चाइल्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है अभी, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे. देन इसके अलावा रिड्यूस योर प्लास्टिक कंजम्पशन. The excessive amount of plastic waste polluting the environment is a serious problem. We are all responsible for this issue and we must take steps to decrease and eventually eliminate plastic pollution. Featuring an enchanting still from Kathakali. So this is Kathakali. Look at this photograph carefully. This is Kathakali. 8 classical dance forms होते हैं, उनमें से एक है Kathakali. So enchanting still है from Kathakali, an Indian traditional dance, और ये रिफ्लेक्ट करता है इनक्रेडिबल इंडिया को. कथकली पे एक शॉर्ट नोट बनाइए. कथकली में जैसे इसमें ग्रीन कलर क्या डिपिक्ट करता है, रेड कलर क्या डिपिक्ट करता है, कथकली में किस टाइप की कथा, किस टाइप की स्टोरीज बोली जाती है. प्रिपेयर अ वेरी वेरी शॉर्ट नोट एंड यू कैन पोस्ट दैट नोट हियर इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन एज वेल. ओके, कथकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये है गोवन पॉटरी. गोवा की ये जो पॉटरी है ये काफ़ी फेमस है, गोवन पॉटरी. ये गोवा का कल्चर है.
विल्डेड आउट ऑफ द वाटर, अर्थ एंड फायर। ये एक्सक्यूजिट पीसेज हैं आर्ट जो सिंबलाइज करता है प्यूरिटी एंड वेरी एसेंस ऑफ लाइफ। सो दिस इज पॉटरी, एज ओल्ड पॉटरी ट्रेडिशन। प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी विजिट है इंडिया यूएसए कोलैबोरेशन में। इन 5 मुख्य बातों पे बात हुई है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडमिया। एनकरेज एक्सचेंज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइज हैकाथॉन्स। ये हैकाथॉन्स क्या होते हैं? कैन यू आंसर? व्हाट आर दीज हैकाथॉन्स? वेरियस सब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज कराना है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन है वोकेशनल स्किल्स और क्वालिफिकेशन का। एनकरेज करना है विजिट्स ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड रिसर्च। ब्लॉक और रिमूव फ्रेंड्स, पीपल हु मेक यू फील अनकंफर्टेबल ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन ऑल टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं। द पॉइंट इज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू देम। ब्लॉक और रिमूव, योर पीस ऑफ माइंड इज पैरामाउंट। सो ब्लॉक और रिमूव, ये जितना भी बुली कल्चर है इसके अंदर भी हमें दबना नहीं चाहिए। यू कैन ब्लॉक और रिमूव फ्रेंड्स, पीपल हु मेक यू फील अनकंफर्टेबल ऑनलाइन। इसको बोलते हैं सेल्फ केयर। आगे एक और आर्टिकल है उसमें मैं ये बताऊंगा ये सेल्फ केयर क्यों इतना जरूरी है। स्टे ऑनलाइन बट स्टे अलर्ट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी यहाँ जो यूएस कैपिटल में विजिट था, आज बाइडेन से मीटिंग भी हो गया है। न्यूज़पेपर एक दिन पुराने चलते हैं। तो यहाँ योगा सेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क ऑन वेंसडे। तो योगा ट्रूली यूनिवर्सल है, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। योगा इज फॉर एवरीवन, ट्रूली यूनिवर्सल, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। ये हिस्टोरिक इवेंट हुआ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर पे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इट वाज अटेंडेड बाय टॉप यूएन ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। तो ये वॉशिंगटन डीसी में था। यहाँ काफ़ी सारे लोगों का गैदरिंग था। नेशनल साइंस फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी भी यहाँ पे थी यूएसए की। सो ये काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ। दिस इज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। क्या बता सकते हो इस साल इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम? मणिपुर वायलेंस इज अ डीप ओन सी, वायलेंस ऑफ एनी टाइप इज नॉट राइट, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। देन दिस इज, यहाँ पे बात है सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है प्ली टू यूथेनाइज स्ट्रे डॉग्स इन केरला। स्ट्रे डॉग मेनेस, बट इसमें भी जो ह्यूमन एंगल है, एनिमल एथिक्स है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। स्ट्रे डॉग से अक्सर डिसीजेज होता है जैसे कि रैबिट, और कुछ केसेस देखे हैं जिसमें बच्चों को बाइट किया है, एल्डरली, या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लाइक दैट। डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है, इसका हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट पेज है। देन दिस इज टेंडर फॉर प्रोजेक्ट ऑन महादई रिवर। महादई रिवर को गोवा में किस नाम से जाना जाता है? कैन यू आंसर? एक महादई रिवर है, ये सेम रिवर है, इसके 2 नाम है। सुप्रीम कोर्ट लिस्ट्स प्ली टू यूथेनाइज रैबिट स्ट्रे डॉग्स इन केरला। नाउ दिस इज ओवर किल है। देन दिस इज हीट एंड स्टेट सी। पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एक्सर्बेटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव। हीट वेव है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यूपी, बिहार, आप सब भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कॉलेज लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने बताया कि हीट वेव के कारण यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रहा है, काफ़ी सारे पेशेंट्स भी आ रहे हैं। द मेंबर्स स्टेटमेंट टाइमली रिमाइंडर है कि हीट वेव को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हीट वेव है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो द पॉइंट इज इंडिविजुअल की जनरल वेलबींग, एक्लेमेटाइजेशन होना, फिजिकल एक्सर्शन, कोमॉर्बिडिटीज, लोकेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है जनरल ओवरऑल वेलबींग को, और इसमें हीट वेव एक प्राइमरी रीजन है। सो द पॉइंट इज हीट वेव इज ऑन राइज, लिटरेसी ज़रूरी है, प्रॉपर रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। पुअर लिविंग कंडीशंस में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एडहेरेंस टू कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर्स एंड इवन इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, ये भी देखने को मिल रहा है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इंडोर वेंटिलेशन, हेल्थ केयर, रेगुलर वर्क ब्रेक्स होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेज लॉस होना चाहिए। इफ अ पर्सन डाइज इन अ हीट वेव, इट इज ओनली फेयर टू आस्क वेदर ही और शी वॉज एबल टू एक्सेस दीज एमिनिटीज। सो दीज आर बेयर मिनिमम जो गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। सो द पॉइंट इज कि हीट वेव को बहुत सिंसियरिटी के साथ लेना है और नेसेसरी मेजर्स लेना है। नॉट एवरीवन हु डाइज ड्यूरिंग अ हीट वेव हैज डाइड ड्यू टू द हीट,
but only if good living conditions have been the norm. If they have not, the state is as much to blame as the heat. Disasters होंगे, बट ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच टाइप ऑफ डिजास्टर से वो सेफ गार्ड करें लोगों को. मोर हिट है देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज. तो अभी काठमांडू नेपाल का कैपिटल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड अभी इंडिया विजिट हुआ था. ये उनका मल्टीपल थर्ड स्टिंट है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. इस विजिट में ओवरऑल ऑप्टिमिज्म दिखा है. काफ़ी सारे जो इश्यूज थे उसको आयरन आउट करने की बात है. बॉर्डर इशू हो गया था, फिर अदर कल्चरल और सेंसिटिव इश्यूज आ गए थे. रिलेशंस अभी रिकवरी मोड पे है, नॉर्मलसी हो रही है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में. इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट. इसमें एट टाइम्स थोड़ी डिफिकल्टीज भी आई है. फॉर एग्जाम्पल हमने हिट एक एक्रोनिम दिया था HIT. व्हाट इज हिट? HIT का मतलब हमें नेबर से रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो हाईवेज जरूरी है, इन्फोवेज जरूरी है और ट्रांसवेज जरूरी है. हाईवेज, इन्फोवेज और ट्रांसवेज. ओके, तो लेट अस सी. नेपाल की बात आती है तो हाइड्रो पावर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. नेपाल बिकॉज ऐसे हायर स्लोप पे, हायर एलिवेशन पे, हिमालयाज, यहाँ से फास्ट फ्लोइंग रिवर है और इंडिया यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने की कोशिश करता है सो दैट इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाए. तो ये प्लान्स हैं. कुछ प्लान्स काफ़ी डिले हो जाते हैं, इससे डिस्टर्बेंसेस होता है. एट टाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, जैसे अरुण 3 प्रोजेक्ट है, देन फुकोट करनाली प्रोजेक्ट है. सो दीज आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. अभी ये भी बात चल रहा है कि नेपाल होते हुए हम बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. सेकेंड जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन. ये पेट्रोलियम पाइपलाइन है, चितवन से स्टार्ट है ये, बिगन इट टू चितवन. बट इसमें भी डिले होता है एट टाइम्स. जैसे कुछ टाइम पहले ब्लॉकेजेस हो गए थे, रोड ब्लॉक्स हो गए थे, तो इससे ऑप्टिक्स भी खराब होते हैं, रिलेशंस में भी डिफिकल्टी आती है. तो इन इरिटेंट्स को हमें हटाना है. एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है, जैसे अग्निवीर है, अग्निवीर अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट चेंजेस हुए हैं फौज में, इंडियन आर्मी में. तो इसमें क्या होता था, नेपाल के बहुत सारे सोल्जर्स इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं. गुरखा सोल्जर्स होते हैं, इनकी एक अलग रेजिमेंट भी है, इंडियन आर्मीज गुरखा रेजिमेंट. ऑनररी जो नेपाल के चीफ होते हैं उनको इंडियन आर्मी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सेम विद इंडियन चीफ इन नेपालीज आर्मी. द पॉइंट इज, इससे क्या हुआ, इस अग्निवीर से थोड़ा डिफरेंसेस आए हैं दोनों कंट्रीज में. अग्निपथ का जो रिवीजन हुआ है इससे थोड़े डिफरेंसेस आए. सेकंड, काला पानी बाउंड्री से डिफरेंसेस आए. काला पानी जिसमें बॉर्डर शेयर एंड बॉर्डर इश्यूज है, लिपू लेक एंड काला पानी, इसको भी पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना प्रायोरिटी है. तीसरा लेगेसी इशू है नेपाल इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950. तो इसमें नेपाल को लगता है कि नेपाल को अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है, तो वो नेपाल इस ट्रीटी को रिवीजन करने की बात करता है. तो द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि नेपाली जो हैं उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है होल ओवर इंडिया. और बहुत सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है, जैसे लबसना में भी ऑफिसर्स आते हैं नेबर कंट्रीज से, उनको भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. देन वहाँ के जो लाइक रेवेन्यू सर्विसेज, आर्मी जनरल्स एट्सेट्रा. द पॉइंट इज कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत क्लोज है, इसको रोटी बेटी का रिश्ता भी बोला जाता है. इसमें अभी एक रिवैम्प वर्जन 2.0 जरूरी है जिस पे अभी वर्क चल रहा है. ओके, बट द पॉइंट इज, हिस्ट्री के जो कॉबवेब्स हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं होने चाहिए. इंडिया के लिए नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल वर्क होना चाहिए. यहाँ बात है, थॉट फॉर अ साइकियाट्रिक केयर गिवर्स टू. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में आ रहा है ना, वो साइकोलॉजी का आ रहा है. साइकोलॉजी या फिर मेंटल इमोशनल हेल्थ का, वेलबींग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. नेशनल हेल्थ मिशन एस्टिमेट ने बताया 6 से 7% इंडिया की पॉपुलेशन सफर करती है मेंटल डिसऑर्डर्स में. ये बहुत कॉमन है मेंटल डिसऑर्डर्स. तो द पॉइंट इज, इससे बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस आते हैं. कोविड-19 में लॉन्ग पीरियड ऑफ आइसोलेशन हुआ, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वन हुआ, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई, तो इससे स्ट्रेस लेवल और बढ़ा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो इससे मेंटल डिसऑर्डर्स भी बढ़े हैं. इसमें इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा भी आ जाता है, तो ये अनट्रीटेड रह जाते हैं. जब विजिबल प्रूफ ऑफ इलनेस नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है, हमें कहीं चोट लग गई है तो वो दिखता है, बट जो मानसिक चोट होती है वो दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं है तो उसकी हम केयर नहीं करते. So in the absence of visible proof of illness, deviation in behavior are generally attributed to attitudinal issues, marital troubles, financial problems or job stress
लव अफेयर्स, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, ये सब यूजुअल कल्प्रिट्स हैं और ये टीनेजर्स को बहुत डिफिकल्टी दे रहे हैं, नॉट ओनली टीनेजर्स, सीनियर पीपल को भी। सो विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस पेशेंट और उनकी फैमिली मेंटल हेल्थ रेस्पॉन्स नहीं मिलने से, स्टिग्मा, टैबू, मिथ होने से ये सफ़र करती रहती है और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे केयर गिवर्स है उनको भी स्ट्रेस होता है। 90% of psychiatric patients in India live with their families. Caregiver is under considerable stress because of physical, emotional caregiving along with the social isolation, financial difficulty, troublesome behavior of the patient. पेशेंट नॉर्मल नहीं रहता है तो उससे आसपास के जितने सारे लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन एक स्टूडेंट करता है, एक्चुअली स्टूडेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, उसकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, आसपास के जितने सारे लोग हैं सबको वही जो साइकिल होता है उससे गुजरना पड़ता है। सो द पॉइंट इज कि इफ वन पर्सन इज इल तो उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। पेशेंट्स का नॉन एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा केयर गिवर्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। लार्जर फैमिली में केयर गिविंग जो होता है वो बर्डन शेयर हो जाता है, बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो इसमें बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। स्पाउस को प्रॉब्लम होता है, क्रोनिक मेंटल इलनेस होता है, तो ये न्यूक्लियर हाउस होल्ड में बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम भी कम है तो फैमिली रिसोर्सेज भी ड्रेन हो जाते हैं, डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। Women caregivers face challenges in balancing caregiving, career, child rearing and household chores. So the point is कि ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है ये इवेंट, और फिर इसमें सपोर्ट नहीं है, इनफॉर्मल सपोर्ट है। प्रोलॉन्ग अगर केयर गिविंग होता है तो ये नेगेटिवली केयर गिवर्स को भी इम्पैक्ट करता है। केयर गिवर्स यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज टू कोप विच इंक्लूड शेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, सेल्फ गैस लाइटिंग, ये सब करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज ए टीचर भी जब वो इतने सारे स्टूडेंट से डील कर रहा है और अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो वो जितना स्टूडेंट को पेन होता है ना उतना ही ज़्यादा फिर टीचर को भी पेन होता है और फिर वो मल्टीपल टाइम्स एनहेंस हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन चैलेंज। बट अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं केयर गिवर्स को भी और पेशेंट्स को भी। तो इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, ज़्यादा वाइज रहने की हमें ज़रूरत है और मेंटली इमोशनली भी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। वीक नहीं बनना चाहिए, वीकनेस नहीं होनी चाहिए। सो द पॉइंट इज कि केयर गिवर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बॉइलिंग फ्रॉग वेयर द इंडिविजुअल माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द इमोशनल स्ट्रेन एंड हेंस विल नॉट रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट। ये बॉइलिंग फ्रॉग की क्या स्टोरी होती है कि एक पानी में एक कैटल है, एक वेसल है, उसमें गर्म पानी है और फ्रॉग उसमें जंप करता है, पानी बहुत हॉट है तो फ्रॉग को समझ में आता है गर्म पानी है, वो तुरंत कूद के बाहर आ जाता है। दूसरे केस में फ्रॉग ऑलरेडी वेसल में रहता है, पानी होता है और पानी को धीरे धीरे हीट किया जाता है, तो फ्रॉग फिर समझ नहीं पाता है कब पानी इतना ज़्यादा डेडली हो गया और वो फ्रॉग के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग हो जाता है। तो सिमिलर इज द केस विद दिस केयर गिवर्स एज वेल। वो डेली इतने ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा, स्ट्रेस एटसेट्रा को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट करने लग जाता है फिर ये। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो काउंसलिंग सर्विसेज आर करेंटली प्रोवाइडेड टू केयर गिवर्स ऑन रिक्वेस्ट। ओके, सो द पॉइंट इज कि ये एक स्टोरी होती है। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ज़रूरी है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ने यहाँ पे बताया। प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस जो होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट, और लोगों को एजुकेट करें, केयर गिवर्स को और साइकियाट्रिक पेशेंट्स को भी। स्टूडेंट्स को भी एट टाइम्स ये बिहेवियर हो जाता है स्टूडेंट का कि उन्होंने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, पढ़ाई किया, बट फॉर सम रीजंस उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। बस स्टूडेंट को तो ये लगता है कि मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, मैंने 2 साल दिए, 3 साल दिए, जी जान लगा के पढ़ाई की, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो अब ये स्टूडेंट, नॉट ऑल, सम स्टूडेंट्स पता है क्या होते हैं, वो बिटर हो जाते हैं बिकॉज उनको पेनफुल एक्सपीरियंस रहा, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन। नाउ वो बिटर होते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, नाउ आई विल डू रॉन्ग विद एवरीवन एल्स। ये जो बिटरनेस है इससे बचना चाहिए, इस बिटरनेस से बचना चाहिए आप लोगों को। सो द पॉइंट इज सक्सेसफुल इंटरवेंशन मॉडल जरूरी है ताकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देखें, साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग हो, काउंसलिंग हो, पीयर सपोर्ट हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, अर्ली वार्निंग है, इन सब चीज़ों को भी देखें, ट्रीटमेंट हो, मेंटली इमोशनली हम खुद भी स्ट्रांग बने, बी अ फाइटर, और बर्डन आइडेंटिफाई हो, कोपिंग मैकेनिज्म हो, एंजाइटी को हम देखें। ओके, तो द पॉइंट इज कि इसमें पेशेंट को तो हेल्प चाहिए, केयर गिवर्स को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ये सबके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और जैसे जैसे अभी जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो रही है, एक्सपेक्टेशंस सबकी बहुत स्काई रॉकेट हो जाती है,
सब एम्बिशियस भी होते हैं, नियर परफेक्ट एवरीथिंग चाहिए, फ्रॉम से फैमिली से फ्रेंड्स से करियर से एवरीथिंग। मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। द पॉइंट इज इससे ऑल टाइप ऑफ मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमास भी बढ़ रहे हैं। तो द पॉइंट इज इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम है जिसमें हम इंश्योरेंस कवर कराते हैं। बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे माइंड रूट, लोन पैक, वाइट स्वॉन एट्सेट्रा। मेंटल इलनेस को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये विजिबल नहीं होती है, दैट डजंट मीन कि इट इज़ नॉट देयर। So the point is tailored intervention होना चाहिए, comprehensive treatment to severe psychiatric illness in the future would need building effective partnership between healthcare professionals, informal caregivers, psychosocial interventions where required. Okay, so this is again very important topic. Sociology, administration, बहुत सारे एंगल से आप इसको देख सकते हो। देन ये जो नेक्स्ट है ये है द जेंडर गैप इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड डिसीज फाइंडिंग। जेंडर गैप यहाँ पर भी है। देन सी यहाँ पे भी बताया है कैसे कैसे जो हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे डिप्रेशन या फिर अल्जाइमर, मेंटल इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, हेडेक, ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस मिसयूज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन दिस इज फ्लड इन असम, बोइंग 747, राइस प्रोक्योरमेंट, WEF में इंडिया की रैंकिंग। यूएस में फेड वापस रेट हाइक साइकिल पे जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट यूएसए में बढ़ेगी। तो पूरे वर्ल्ड में जो पैसा लगा होता है ना स्टॉक मार्केट्स वगैरह में, वहां पे अभी पैसा का आउटफ्लो होने वाला है अगर यूएस ने रेट हाइक साइकिल को रिज्यूम किया तो। लेट अस सी। ये कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। एनवायरमेंट चेंज है, एनवायरमेंट चेंज के लिए फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है उसको टेकल करने के लिए। तो अर्लियर कमिटमेंट जो था डेवलपिंग नेशंस का, उसका क्या हुआ? एक्चुअली कमिटमेंट्स होते हैं, टॉक्स बहुत होती है, बट सब्सटेंस कम होता है। COP28 में बात हुआ क्लाइमेट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का, और जो गैप्स हैं फंडिंग में उसको दूर करने की बात हुई। तो अब ये बात है NCQG 100 बिलियन पर ईयर टिल 2020 का कमिटमेंट था, इतना फंड्स आएगा। COP 2009 में हुआ था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो COP 2015 में जो हुआ था पेरिस क्लाइमेट, उसमें था न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बनाएंगे 2025 के पहले, फाइनेंस करना है हमें दिस क्लाइमेट चेंज को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल है। अगेन यहाँ पे फंड कलेक्शन की बात है, एविडेंस बेस्ड होगा, रैशनल होगा, लॉस एंड डैमेज फंड भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक नया फाइनेंस गोल बनाया है, 100 बिलियन का तो नहीं हुआ, अभी हम एक नया फाइनेंस गोल बना रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज दैट, लेट अस सी आगे क्या होता है। सो NCGQ इज दस टर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल. It pulls up the ceiling on commitment from developed country and is supposed to anchor the evolving needs and priorities of developing countries. Common but differentiated responsibilities. Then the art of the indirect and the anxiety about empire. Know your English है. Everyone thinks of their own way. Everyone singular नहीं होता, यहाँ हम their लगाते हैं. So everyone, जैसे they, their, them, ऐसे हम use करते हैं. Everyone, somebody, anyone, everybody, someone, anyone, anybody, nobody, इन सब में हम they और their लगाते हैं, they, their, them, etc. और ये सेक्स न्यूट्रल होते हैं. ओके, देन इसके अलावा द यूज ऑफ they, them, their is not wholly illogical. We use it. All right. जैसे everyone thinks they are honest. Everyone came to represent their grievances. Someone came this morning, didn't they? No one should think that they deserve some special treatment. Experience is the same way everyone gives to their mistakes. Then nobody reads this book these days, do they? तो ये दे हो जाता है एवरीवन एटसेट्रा इनके साथ. देन इसके अलावा मैरी वर्ड होता है, वेडिंग इज वन वर्ड, एंड देन दिस इज सिनोनिम. अब क्या होते हैं, जैसे देखो ये पता होना चाहिए, हम्बल, मीक और डोसाइल. हम्बल वो होता है जिसमें वैनिटी और प्राइड नहीं रहता. अ हम्बल पर्सन इज विदाउट एनी वैनिटी और प्राइड, अननेसेसरी एयर नहीं है. अ हम्बल मैन इज नॉट अ वीक मैन, वो वीक नहीं है बट स्टिल वो हम्बल है. रियल ह्यूमिलिटी इज द मार्क ऑफ स्ट्रेंथ. अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आप में ह्यूमिलिटी होती है. रियल ह्यूमिलिटी इज द मार्क ऑफ स्ट्रेंथ. अ मीक मैन इज जेंटल, क्वाइट एंड नॉन असर्टिव. ही मे डू व्हाट अदर्स मे आस्क हिम टू डू. तो मीकनेस होता है, मीकनेस में थोड़ा टिमिडिटी वर्ड भी आ जाता है. ओके, एंड ही इज ओबीडियंट, टेम. ऑलराइट. मम्बो जम्बो मतलब होता है मीनिंगलेस रिचुअल है वो. सो दिस इज इंग्लिश. दिस इज रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली, ग्लोरियस, डेजलिंग. ये जून 21 है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, इसको योगा डे माना जाता है.
It is observed as the summer solstice and shares a special significance in many parts of the world. ऋग्वेदा में योगा का मेंशन है, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में योगा सूत्रा है पतंजलि का, इसमें बात है योगा कैसे कंपाइल हुआ था, पतंजलि। सूर्य नमस्कार होता है, सीक्वेंस ऑफ 12 लिंक्ड आसन्स होते हैं। प्राणायाम होता है, इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया जाता है। देन दिस इज शिनशिन, ये है टेम्पल है, जापानीज योगा होता है, ये जापानीज योगा। देन फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है तिरुमलाई कृष्णराजे वाडियार 4। ओके, सो ये क्विज हो गया। अब आता है दिस इज मेटी, आर्म्ड फोर्सेस ने भी योगा डे सेलिब्रेट किया, फ्लोटिंग मैट। तो ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में हुआ था। देन सेनेट है नेटो, इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेसेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो इंडिया की 8 रैंक बढ़ी है, WEF की रिपोर्ट ने बताया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फर्स्ट में आइसलैंड है, सेकंड नॉर्वे है। ओके, तो इंडिया की रैंक ऐसे बढ़ी है। गवर्नमेंट लाइकली टू पे assured pensions for its employees says official, 16 tigers dead in उत्तराखंड, नॉट गुड। MBBS के करिकुलम में अभी एक ओवरहॉल आने वाला है। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, दिस इज पेरिस US। देन यहाँ पर यूक्रेन है, बाइडन है। देन दिस इज इंडस्ट्री सीज एक्सेस टू गति शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे। इंडिया रशिया की ऑयल परचेजेस का नया रिकॉर्ड हासिल हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप में शार्प फॉल हुआ है। दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, फुटबॉल में इंडिया बहुत अच्छा खेला। ये सुपर कंडक्ट एट टाइम्स जो द हिंदू का ये जो सेक्शन आ रहा है ना, ये काइंड ऑफ ओवरडू हो रहा है, इसको सेलेक्टिवली पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें ओवरडू है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स शो हाउ टू सेट अ टेबल टेनिस बॉल स्पिनिंग। पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या होती है, कैन यू टेल? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। अभी हम देखते हैं आंसर सबमिशंस 19 का। ऐसे का मैं कल तक ऐसे नंबर 4 शेयर करता हूँ, 4 and 3। प्रिपेयर अ 1 पेज समरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, विमेन एम्पावरमेंट, एल्डरली केयर एंड इंडियन मीडिया। हमने कितना अमेजिंग सेशन किया अभी मेंस में, अच्छे से चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा। अब इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है, इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है। एंड लुक एट दिस कॉपी, विमेन एम्पावरमेंट डेफिनेशन क्या होती है, ये इश्यूज क्या होते हैं, ये 8 इश्यूज बता दिए। एसेंशियल वेज क्या है, ये 7-8 एसेंशियल वेज हो गए। गवर्नमेंट स्कीम्स में ये सारी हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हॉस्टल, वन स्टॉप, हेल्पलाइन, महिला पुलिस, स्वाधार, शक्ति केंद्र, एक्सीलेंट। इंडियन सोसाइटी ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, पोषण, 4 स्टेजेस ऑफ एम्पावरमेंट क्या होता है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, बिलीफ एंड रियलाइजेशन। अमेजिंग, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, बिलीफ एंड रियलाइजेशन। Then 3 elements क्या है, conclusion, when women are empowered, role of women in society, see there are so many roles. So the point is, ये जो तरीका है ना, अभी इसको थोड़ा और एम्फेसिस दे रहे हैं मेंस एग्जाम तक। आप बोलो तो मैं एक रेगुलर टाइप का क्वेश्चन भी कल से चालू कर देता हूँ, 2 क्वेश्चंस कर देता हूँ, एक नोट्स वाला और एक रेगुलर क्वेश्चन वाला, प्रिपेयर अ नोट, और एक ये समरी वाला। ओके, बट पार्टिसिपेट इन दिस, ये आपको बहुत काम आएगा। इन दी एंड यही चीज़ काम आती है और यही चीज़ हम मेन एग्जाम में लिखते हैं। फैंसी चीज़ किसी काम की नहीं है, मैं डे 1 से बता रहा हूँ। एल्डरली केयर, तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से देखो सब कंपाइल किया, तो ऐसा अपना एक पर्सनल कंपाइलेशन करो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई आपकी कंसोलिडेट होगी, हवा में नहीं रहेगी सारी चीजें। इंडियन मीडिया हुआ, वेरी गुड। सी ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वंडरफुल दीपेश, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। देन जूही ने कितने अच्छे से हिंदी में लिखा है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है, पर्यावरण, रक्षा, खेल, अंतरराष्ट्रीय, वेरी गुड। जब हम फोटो लेते हैं ना तो उसको थोड़ा स्टेबल करके लें, और कोशिश हम ये भी कर सकते हैं कि सनलाइट में ले लें, ब्राइट सनलाइट जो होती है ना, उसमें और क्लैरिटी और अच्छा आता है, तो ये साफ साफ पढ़ने में आएगा। दिस इज गुड। सरकार के पहलू, कानूनी समर्थन, समाज में योगदान, मीडिया की भूमिका, बहुत अच्छा वर्क है, अमेजिंग। अंशुमन इज अगेन डूइंग रियली वेल। विमेन एम्पावरमेंट पे NFHS 5 इश्यूज, न्यूज, करंट अफेयर्स, एल्डरली, वेरी गुड, दिस इज रियली नाइस। इंडियन मीडिया, फैंटास्टिक। नंदिनी, दिस इज सो नाइस। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए विमेन एम्पावरमेंट के, देन इसके बाद सारे पॉइंटर्स बताए यहाँ पे, गुड। सोशल, तो देखो कितना कंसाइज हो गया ये चीजें। एग्जाम में बस इसको एक बार रिवाइज करना है और मेंस बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा। ओके, इंडियन मीडिया में भी आपने अच्छा लिखा, वेरी नाइस। आशा, दिस इज अगेन रियली गुड। सी कॉपी इज सो नीट एंड क्लीन। विमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड, व्हाट अ गुड स्टार्ट। ऐसी चीजों को याद रखो, कोट्स को, पंच लाइन्स को, डेटा को, टॉपिक्स को, डू दिस। This is elderly care, fantastic. All right. So this is really nice. इसी तरीके से आपको participate करना है, continue करना है. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.